So hey you guys, welcome back to the Genji classes. So guys, this is the part 2 of the retail trade. So as you all already know that we have uploaded, that is the part 1 of the retail trade. So हम लोगों ने part 1 में guys क्या पढ़ा था? Just a quick recap. We have studied retailer का मतलब क्या होता है. We have studied the characteristics of a retailer. Okay, we have completed the difference between the wholesaler and the retailer. Okay, and we have even completed the types of retail trade. So that is nothing but till now we have completed the part 1, that is the meaning, characteristics and types. Also we have completed till the mail order. I have to complete the chain store. Okay, we have completed the internet and a small scale fixed shops. We need to complete this one. From here we are about to start. So before that, just a brief introduction about myself and my class. So here I am, your tutor. So guys, this is nothing but the Genji classes. So we provide the online classes also, online plus offline batch we have available. If you are from the Maharashtra or if you are from any school, if you are residing in Howrah, so you can contact us using this. Okay, and if you want to visit our online class, so online class is conducted every 4 days in a week. So that is on the Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday. So you can contact here for the online and for the offline classes. Okay, so thank you everyone, and just let's start with this whole chapter 16 part 2. So in this part 2 guys, we are about to start the fixed shops, small scale retail shops, then we will come to the departmental stores, and then we are about to complete the whole chapter. It will take around 10 to 15 minutes to complete the whole chapter. So guys, just stay tuned and just enjoy your classes. So guys, देखते हैं what is fixed shops. You know what is the meaning of fixed shops? आपको पता है ना फिक्स्ड शॉप्स क्या होता है. अभी तक हम लोगों ने इंटरनेट्स पढ़ा, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे हॉकर्स होते हैं जो इधर उधर जा के अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, राइट. लेकिन यहाँ पे देखोगा इसकी फिक्स्ड शॉप्स होता क्या है, और स्मॉल स्केल रिटेल शॉप्स भी बोल सकते हैं. तो स्मॉल स्केल रिटेल शॉप्स आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ रिटेल ट्रेड. दे हैव फिक्स्ड प्रीमाइसेस. सो दे हैव फिक्स्ड प्रीमाइसेस. दे मे क्लासिफाइड एज फॉलोस. ओके, आपको पता है ना, आपके घर के अगल बगल में बहुत सारा दुकान होगा जो कि परमानेंटली रहता है, और जाकर के आप वहाँ पे किराने का दुकान से, डेट इज़ द रिटेल शॉप से आप जाकर बहुत सारा सामान को लेते हो, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स. हु आर स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स? सो दिस स्टॉल्स आर लोकेटेड इन द मेन स्ट्रीट और स्ट्रीट क्रॉसिंग्स. Okay, street crossing will be here. A street is an improvised structure made of tin or wood. The street stall holders are either place his good for on temporary platform or sells toys, stationery, हॉसरी आइटम्स एट लो प्राइस. जैसे कि आप देखते होगे ना, पान वाले का जो दुकान होता है, आप देखते हो टीन से, वुड से, ये सबसे बना रहता है. फिर नॉर्मली जो दुकान होते हैं ना, ओके, नॉर्मल जो दुकान होते हैं जो बहुत मतलब सपोज कोई टॉयज़ के लिए खोला हुआ है, ठीक है, जो रोड के अगल बगल में देखते हो, दे आर नथिंग बट स्ट्रीट स्मॉल स्टॉल होल्डर्स. ठीक है, वहाँ पे क्या मिलता है, लो प्राइजेस में आपको बेटर गुड्स मिल जाता है, ठीक है ना. बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई प्राइस चार्ज नहीं किया जाता है, बिकॉज वहाँ पे सबके लिए जो नॉर्मल जो एक जो नॉर्मल जो कंज्यूमर है, उसके हिसाब से वहाँ पे गुड्स को रखा जाता है, जिससे कोई भी कंज्यूमर उसको ईजिली उसको अवेलेबल करवा सके, उसको परचेस कर सके. और उसका जो नीड्स है, सपोज किसी का टॉयज़ का नीड है, ओके, किसी को गिफ्ट परचेस करना है, तो आपने देखा होगा कि स्ट्रीट होल्डर्स हम लोग इजीली वहाँ से कर पाते हैं. नंबर 2, सेकेंड हैंड गुड्स. सेकेंड हैंड गुड्स का मतलब क्या होता है? जो आप लोग, जैसे आपको पता है ना, बहुत सारा वेबसाइट भी अभी तो OLX, ठीक है, बहुत सारा जगह जहाँ से आप सेकेंड हैंड, जैसे आपको पता है बाइक का तो बहुत सारा अभी शोरूम्स है जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ सेकेंड हैंड गुड्स को ही बेचते हैं, सेकेंड हैंड बाइक्स ही बेचते हैं, और कार्स का भी है. तो और मोबाइल फ़ोन्स का तो आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा है. मोबाइल फ़ोन का तो हर एक जगह आपको मिलेगा, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे चांदनी मार्केट एंड सो ऑन, तो वहाँ पे क्या होता है, सेकेंड हैंड गुड्स ही मिलता है. ओके, तो सेकेंड हैंड गुड्स शॉप सेल्स सेकेंड हैंड आर्टिकल्स सच एज बुक्स. आपको पता है ना, ये हमारे यहाँ पे कॉलेज स्ट्रीट है, वहाँ पे आपको बुक्स मिल जाता है. बहुत सारी जगह पे आपको पता है जापान में तो फ्री में क्लोथ्स मिलता है सेकेंड हैंड. ओके, सो फर्नीचर भी आपको सेकेंड हैंड मिल सकता है. दे कैटर द नीड्स फॉर द पुअर पीपल. ओके, इट्स नॉट अ पुअर पीपल, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पुअर लिखाना चाहिए, यहाँ पे नीडी पीपल. आपको पता है पुअर डजंट सेटिस्फाई द मीनिंग ऑफ सेकेंड हैंड, क्योंकि वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ना. अगर मान लो कोई इंसान पुअर है तो फिर वो क्यों अफोर्ड करेगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ बेसिक नेसेसिटी से मतलब है, लग्जरी गुड्स से नहीं. आप समझना ध्यान से. देखो, इफ़ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, इफ़ यू वांट टू हैव अ नीड, अगर आपको कोई भी चीज़ का नीड है, जैसे कि सपोज इफ़ यू वांट टू बाई अ बाइक, है ना, आप उसको बाइक को आप लेना चाहते हो, तो आप उसको नया लोगे तो ऐसा थोड़ी है कि न्यू से ही आपका सेटिस्फाई होगा आपका नीड को. आप तो ओल्ड भी ले सकते हो ना, है ना, जिससे आप इजीली आप चीज़ों को सेटिस्फाई कर सको. फिर सेकेंड हैंड बुक्स में देखो,
ओके, हु कैन नॉट अफोर्ड, हाँ ये हो सकता है क्योंकि जो लोग नए आर्टिकल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते इजीली वो लोग सेकेंड हैंड गुड्स को ले सकते हैं जिससे उनका जो नीड्स है वो इजीली पूरा हो सके, राइट। फिर यहाँ पे आता है जनरल स्टोर्स। ओके, दिस स्टोर सेल्स अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। आपने जनरल स्टोर देखा होगा जहाँ पे बुक भी मिलता है, ओके, जहाँ पे बुक भी मिलता है, ग्रॉसरी मिलता है, ब्रेड एंड बटर मिलता है, मतलब नॉर्मल जितने भी सामान है सारे मिलते हैं, ब्लेड्स, ओके, बाथिंग, ओके, देन बाथिंग की जितना भी सामान है, विद इन वॉशिंग पाउडर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ मिलता है, जैसे कि बिग बाजार। ठीक है, बिग बाजार क्या है, एक तरीके का जनरल स्टोर ही तो है गाइस। ठीक है, लेट्स कम टू द सिंगल लाइन स्टोर। आपको पता है सिंगल लाइन स्टोर क्या होता है? हार्डवेयर शॉप्स। ओके, हार्डवेयर शॉप्स में आप कभी गए होगे, वहाँ पे आपको क्या वहाँ पे कुछ खाने का सामान मिलेगा? नहीं सर, वहाँ पे खाने का कैसे मिलेगा? वहाँ पे तो सर जो भी रॉ मटेरियल से, जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहेगा, ओके, उसी से सर रिलेटेड सर सारा का सारा सामान मिलेगा, राइट। तो सर वहाँ पे क्या है, वो सिंगल लाइन स्टोर है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का ही गुड्स मिलता है। जैसे कि कभी भी आप जब शॉप पे जाओगे और जब आप क्लोथिंग शॉप पे जाओगे तो सर वहाँ पे खाने का थोड़ी मिलता है, सर वो सर सिंगल लाइन स्टोर नहीं है वहाँ पे। लेकिन आप जब जनरल स्टोर में जाते हो तो आपको वहाँ पे सर खाने का भी मिलता है, कपड़े का भी मिलता है, जैसे कि बिग बाजार में, राइट। लेकिन सिंगल लाइन स्टोर में सिर्फ और सिर्फ सेम लाइन ऑफ गुड्स से वो लोग डील करते हैं, जैसे कि बुक स्टोर तो सिर्फ बुक बेचेंगे, केमिस्ट स्टोर तो सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ ही सब बेचेंगे, राइट। चलो यहाँ पे अब यहाँ पे आना गाइस, तो आई होप आप लोगों को इजीली सब कुछ चीज़ समझ में आ रहा होगा। एंड समझ में आ रहा है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, यू डोंट सब्सक्राइब, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज जिससे जितने भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा यू विल गेट ऑल द वीडियोस, ठीक है। सो लेट्स कम टू द स्पेसिफिकली, ओके, what is this specialty shopsies, okay. So these shops deals in the specialized product, right, one type of product। जैसे कि अब अगर आप रोलेक्स में जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे घर ही मिलेगा, लेकिन वो भी क्या, सिर्फ और सिर्फ दे डील इन द स्पेशल वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ओनली। फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस गारमेंट, आपने देखा होगा ना, बच्चा लोग का दुकान अलग ही होता है, बच्चा लोगों का शॉप अलग होता है। एजुकेशनल बुक्स में भी ना यूपीएससी ये सब का जो तैयारी करते हैं ना, उन लोगों का बुक अलग होता है, और जो नॉर्मल जो बुक्स का जो दुकान है, ओके, वो अलग होता है, जिसमें सिर्फ स्कूल के बुक्स अलग मिलते हैं, फिर प्रोफेशनल एग्जाम्स के बुक अलग मिलते हैं। सो दिस इज द स्पेशलिटी शॉप्सीज, ओके। सो गाइस देखो, अभी हम लोगों ने स्ट्रीट स्मॉल होल्डर्स पढ़ा, जिसमें कि हम लोगों ने ये बात पढ़ा था, ठीक है जी, कि वहाँ पे हम लोग नॉर्मली जो गुड्स है, जो कि आप लोग देखते हो स्टेशनरी शॉप्स हो गया एंड सो ऑन, जिसमें लो प्राइसेस पे जो भी गुड्स मिलता है, ओके, पनवारी का दुकान एंड सो ऑन। एंड देन सेकेंड हैंड गुड्स में हम लोगों ने देखा कि जो सेकेंड हैंड गुड्स मिलता है, जो कि इजीली कहीं पे भी कोई भी इंसान किनता है, जैसे कि बुक्स का दुकान हो गया, ठीक है, फिर फर्नीचर हम लोग सेकेंड हैंड लेते हैं, देन बाइक्स इज देयर, देन जनरल स्टोर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जहाँ पे हर एक चीज़ एक ही रूफ के अंडर में अवेलेबल रहता है, कि ग्रॉसरी भी वहीं पे मिल जाए, ओके, साग सब्जी भी मिल जाए, ब्रेड बटर भी मिल जाए, टूथपेस्ट भी मिल जाए, मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड क्लोथ्स इवन के अवेलेबल रहते हैं। फिर सिंगल लाइन स्टोर हम लोगों ने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा, देखो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ गुड्स अवेलेबल रहता है, जैसे कि बुक स्टोर हो गया, वहाँ पे सिर्फ बुक मिलेगा, केमिस्ट स्टोर हो गया तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ मिलेंगी। देन स्पेशलिटी शॉप्सिस के बारे में भी हम लोग ने बात किया, शॉप के बारे में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दे डील इन द वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि बच्चों का कपड़ा के लिए अलग दुकान होते हैं, एजुकेशनल बुक्स जिसमें कि प्रोफेशनल्स के लिए अलग होते हैं, देन फिर प्रोफेशनल्स के लिए अलग होते हैं, देन जो इंसान जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, जिन दिन कॉलेज में जो पढ़ रहा है, उन लोग के लिए अलग अलग बुक्स के स्टोर्स होते हैं। सो दिस इज नथिंग बट स्पेशल शॉप्स, ओके। सो दिस ऑल आर अबाउट द फिक्स शॉप्स, जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है। लेट्स मूव, आई होप ये पूरा का पूरा क्लियर होगा आप लोगों को। लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज नथिंग बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दैट इज लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज का मतलब क्या होता है गाइस? लार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा बड़ा जो दुकान होता है ना, बहुत बड़ा बड़ा जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, सो दे आर नथिंग बट लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है, ध्यान से समझना। एक होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, उसका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे अभी हम लोग, चेन स्टोर पढ़ेंगे, मेल ऑर्डर हाउसेस पढ़ेंगे, ओके, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, ओके, हाइपर मार्केट पढ़ेंगे, फ्रेंचाइजी पढ़ेंगे, डीमेरिट्स, ओके, एंड टेली शॉपिंग, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, ओके। एंड ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। सो बी फोकस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना आप लोग क्या होता है मीनिंग, ओके। व्हाट इज डिपार्टमेंटल स्टोर, व्हाट इज द मीनिंग? ध्यान से समझना कि डिपार्टमेंटल स्टोर का पूरा मतलब क्या होता है। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ लार्ज स्केल रिटेल एस्टेब्लिशमेंट कंसिस्टिंग ऑफ फीस ऑफ ऑल द सेवरल डिपार्टमेंट्स। सर ऑल द सेवरल डिपार्टमेंट्स का मतलब क्या है सर? एक रूफ के अंडर में आपको सर वहाँ पे वेजिटेबल्स भी मिल रहा है, ओके, ग्रॉसरीज भी मिल रहा है, ठीक है, रिटेल का आपको सारा का सारा मिल रहा है। फिर देन देयर सर क्लोथ्स सर, सारा का सारा सर आपको जितने भी क्लोथ्स चाहिए सर वो भी ले सकते हो आप। देन आपको वहाँ से अगर आपको सपोज
रेजिन्स लेना है या फिर कुछ भी लेना है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल, यहाँ तक कि टॉयस, ठीक है, बुक्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल अंडर वन रूफ, दैट इज नथिंग बट डिपार्टमेंटल स्टोर। आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसा करके सर होता है डिपार्टमेंटल स्टोर। देख पा रहे हो आप कितने बड़े डिपार्टमेंट से कितने सारे शॉप्स है, राइट, जो कि नॉर्मली आप शॉपिंग मॉल्स पे देख पाते हो। ऑल द डिपार्टमेंट्स आर लोकेटेड इन लेटर, ओके, फ्रॉम वन बिल्डिंग एंड फंक्शन अंडर द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कंट्रोल। ये याद रखना कि सबका जो मैनेजमेंट होता है ना, सबका मैनेजमेंट और सबका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ ओके सेंट्रलाइज्ड होता है। यहाँ पे ग्रॉसरीज के लिए अलग नहीं जाना पड़ता है, रिटेल के लिए अलग नहीं जाना पड़ता है, ठीक है, फिर देन क्लोथ के लिए अलग नहीं जाना पड़ता है। तो सबका सब सर क्या रहता है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट रहता है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रहता है। लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आर एज फॉलोज। नंबर 1, ध्यान से समझना कि उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नंबर 1 क्या है, साइज। अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज ए लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, तो सर वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, साइज बहुत बड़ा होता है। नंबर 2, सेंट्रल लोकेशन, और ये याद रखना जो सेंट्रल लोकेशन रहता है ना, ऑलवेज टारगेट रहता है कि मेन मार्केट में हो, जहाँ से सर हज़ारों लोग डे के सर आते जाते हो, 10,000 50,000 लोग का सर आना जाना हो, वहीं पे वो सर मेन मार्केट में होता है। ओके, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे इधर में भी सर जो हावड़ा है या फिर जो भी कोलकाता है ना, कोलकाता के मेन मार्केट में बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स है। ओके, ऑल डिपार्टमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड अंडर वन रूफ इन वन बिल्डिंग। ये भी आप ध्यान से समझना, एक मान लो एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, उसमें से सारे के सारे डिपार्टमेंटल स्टोर है और सबका सर मैनेजमेंट ओके अंडर वन रूफ ही होता है। ओके, और सबका मैनेजमेंट अंडर वन कंट्रोल ही होता है। ओके, वन कंट्रोल एंड वन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट भी सर एक ही मैनेजमेंट के अंडर में होता है और वन रूफ के अंडर में होता है। ऐसा नहीं कि सबका अलग अलग दुकान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो लेट्स कम टू द वाइड रेंज ऑफ गुड्स। ये भी याद रखना, वाइड रेंज ऑफ गुड्स मतलब बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स को, वैरायटी ऑफ चीज़ों को वो लोग सर प्लान करते हैं एंड उन लोगों को सर एक प्लेस पे डालते हैं। जैसे कि सपोज देखो, मान लो ये बहुत बड़ा सा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो यहाँ पे सर यहाँ पे आपको मान लो क्लोथिंग मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रॉसरी मिल रहा है, यहाँ पे आपको सर रिटेल का सर सारा सामान मिल जा रहा है, यहाँ पे सर आपको स्टेशनरी का मिल रहा है, और यहाँ पे सर आपको केमिस्ट का मिल रहा है। तो सर सारा का सारा चीज़ अंडर वन डिपार्टमेंट एंड अंडर वन मैनेजमेंट सर ये सर पूरा का पूरा सर ऑपरेट करता है। इज इट क्लियर? सो गाइस देखो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल डिपार्टमेंट, जो कि मैं आपको वही दिखाया, ठीक है, एंड दे डील इन वन लाइन ऑफ गुड्स। ऐसा नहीं है मतलब वन लाइन गुड्स, वैरायटी ऑफ गुड्स रहता है, ठीक है, बट वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बोल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मतलब वन लाइन का मतलब क्या हो कि सारा का सारा एक ही रूफ के बीच में प्रेजेंट है, राइट। अट्रैक्टिव अपीयरेंस, आपको ये भी याद रखना, डिपार्टमेंटल स्टोर इज अ हाउस, ओके, ये हाउस इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग विच इज़ फुल्ली फर्निश्ड एंड वेल डेकोरेटेड। ये भी याद रखना, जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो हमेशा फुल्ली फर्निश्ड रहता है और वेल डेकोरेट करके रखा जाता है। जैसे ही आप इंटर करोगे ना, आप देखोगे वाह कितना अच्छे अच्छे ड्रेस हैं, कितने अच्छे अच्छे शूज़ हैं, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अट्रैक्ट करके रखा जाता है, जिससे कस्टमर्स जो हैं उससे वो अट्रैक्ट हो, ठीक है। लेट्स कम टू द यूनिफाइड मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफाइड मैनेजमेंट? यूनिफाइड मतलब सिंगल मैनेजमेंट। सर यूनिफाइड का मतलब क्या होता है? सिंगल कंट्रोलिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अंडर अ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल परचेस, ओके, परचेसेस आर सेंट्रलाइज्ड टू ऑब्टेन द एडवांटेजेस ऑफ लार्ज स्केल एंड एक्सपर्ट बाइंग। तो सर आप इजीली सर चीज़ों को परचेस कर सको, एक्सपर्ट बाइंग कर सको, ठीक है, जितना ज़्यादा किनना है उतना किन सको। सो दैट इज नथिंग बट यूनिफाइड मैनेजमेंट। ऑल डिपार्टमेंट फंक्शंस इंडिपेंडेंटली बट दे आर देखो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंटली वो फंक्शन तो करते हैं, जैसे कि ग्रॉसरी का तो वो अलग है, वहाँ पे लोग अलग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सबका जो मैनेजमेंट है वो भी अलग है, नहीं। सबका मैनेजमेंट सर कैसा है सर? सबका मैनेजमेंट सेंट्रलाइज्ड है, अंडर वन कंट्रोल है, ठीक है। परचेसेस आर सेंट्रलाइज्ड टू ऑब्टेन द डिफरेंट एडवांटेजेस, ओके। जो आप परचेस करते हो, जैसे कि आप देखते हो ना कि जब आप उसमें कार्ट में जब आप ऐड करते हो तो सारा का सारा अंडर वन मैनेजमेंट रहता है, अंडर वन कंट्रोल ही रहता है, राइट। सो दिस इज ऑल। सो लेट्स कम टू द चेन स्टोर। तो गाइस ये जो चेन स्टोर है और जो मल्टीपल स्टोर्स है, ये सर चेन स्टोर और मल्टीपल स्टोर क्या होता है, ध्यान से समझना कि चेन और मल्टीपल स्टोर होता क्या है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द चेन एंड मल्टीपल स्टोर्स। देखो यहाँ पे मल्टीपल शॉप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सिमिलर रिटेल शॉप्स ओन्ड बाय ए सिंगल बिजनेस एंटरप्राइज बट हैविंग ए स्कैटर्ड लोकेशंस। मतलब जैसे कि आपने एम बाज़ार का नाम सुना होगा, ओके, एम बाज़ार, जैसे कि आपने बिग बाज़ार का नाम सुना होगा, जो कि अभी तो उठ चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे सर उसका सर क्या रहता है सर? दे हैड अ स्कैटर्ड लोकेशन। अच्छा, सबसे इजी एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊँ तो आपने जूडियो तो सुना ही होगा ना। जूडियो का सर आप कोई भी शॉप पे चल जाओ, कहीं पे भी चल जाओ, सही सब जगह पे सेम गुड्स, सर सेम गुड्स, ओके, आपको सर सेम प्रोडक्ट्स, आपको इवन की लगेगा कि अरे यार
मैं तो सेम ही शॉप में आ गया, जो मैं कोलकाता में गया था और जो मैं हावड़ा में गया था, दोनों सेम है। ऑब्वियसली सर उसको इसलिए ऐसा किया जाता है जस्ट बिकॉज क्योंकि वहाँ पे सर सिंगल बिजनेस एंटरप्राइज रहता है, और सर वो स्कैटर्ड लोकेशन पे ऑपरेट करता तो है, लेकिन इतना ट्राई किया जाता है कि वो जो बिजनेस है वो इजीली एक तरीके से सिंगल ओनरशिप में सर इजीली काम कर सके। ओके, और जो आइडेंटिकल जो शॉप्स हो ना, पूरी की पूरी तरीके से वो आइडेंटिकल होना चाहिए, लेकिन वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसके जो फ्रंट एंड में अगर ये ड्रेस लगा हुआ है ना गाइस, तो सर वो जो दूसरे जो लोकेशन है ना, दूसरा लोकेशन है, वहाँ पे भी ये सिमिलर टाइप ऑफ ड्रेसेस वहाँ पे भी लगा रहेगा, जस्ट बिकॉज जिससे वो पता चल सके कि दिस प्रोडक्ट्स एंड दिस शॉप्स आर आइडेंटिकल, और इसका जो ट्रेडमार्क होता है वो भी सर सेम होता है। ओके, आप लोगों ने सर ये जूडियो में सर आपने ये नोटिस किया होगा। लेट्स कम टू द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ओके ऑफ द मल्टीपल स्टोर। अब ये मल्टीपल शॉप्स नाम ही है इसका, मल्टीपल शॉप्स मतलब समझ में तो आ ही रहा होगा आप लोगों को कि एक शॉप है जिसका बहुत सारा मल्टीपल ब्रांचेस है। ओके, मतलब बहुत सारा मल्टीपल कंट्रोल सिस्टम्स है जिसको ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह पे उसको कंट्रोल किया जाता है। सो लेट्स कम टू द मल्टीपल शॉप्स में होता क्या क्या है। ये बहुत बड़ा होता है, पहले बात तो ये लार्ज साइज का होता है, ठीक है, लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेट्स कम टू द स्पेशलाइजेशन। मल्टीपल शॉप्स स्पेशलाइज इन वन लाइन और लिमिटेड वैरायटी। लिमिटेड वैरायटी मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे कि जूडियो अगर क्लोथ में डील करता है तो सिर्फ और सिर्फ वो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करेगा। फॉर एग्जाम्पल बाटा का ही स्टोर देख लो आप, ठीक है, आप बाटा का तो ठीक ही है, फिर उसके साथ साथ आप श्री लेदर्स का देख लो। जहाँ भी आप जाओगे ना, आपको जैसा प्रोडक्ट जो आपने वहाँ पे देखा था इंडिया के किसी भी पार्ट पे, अगर आप सेम प्रोडक्ट अगर आपको बोलते हो बाटा का या फिर श्री लेदर्स का, तो आपको सर वो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट देने के लिए वो रेडी होंगे, बिकॉज दे हैड अ स्पेशलाइजेशन इन सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, और उन लोग का सर डील सेम करते हैं। Let's come to the decentralized location. What is the meaning of decentralized location? So guys, multiple shops are situated in different parts of the country as near to the customers as possible. ये भी याद रखना, हमेशा ये ऐसा पॉसिबल किया जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मार्केट्स में, मेन मार्केट में सेंट्रलाइज्ड लोकेशन किया जाए, जिससे जो मल्टीपल शॉप्स जो है ना, ओके, और एक ही मतलब सपोज एक स्टेट है ना, जैसे कि वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल में आपको डिफरेंट पार्ट्स पे, जैसे कि अगर मान लो अगर आपको हावड़ा में मिलता है श्री लेदर्स का शॉप, ठीक है, तो आपको कोलकाता में भी सर आपको एक मिलेगा, राइट। तो आपको डिफरेंट प्लेसेस पे आपको अलग अलग मिलते रहेगा। सो दैट इज नथिंग बट ओके सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट? कि मल्टीपल शॉप्स रहता है जो कि ओन रहता है और कंट्रोल रहता है बाय द सिंगल फर्म। सिंगल फर्म मतलब अगर बाटा को अगर एक जगह से कंट्रोल कर रहा है, या फिर अगर आप हल्दीराम का अगर आप एग्जांपल लो, तो हल्दीराम तो सर बहुत बहुत जगह पे है, राइट। ओके, ऑल ओवर कंट्री में कुछ नहीं तो 500-600 प्लस हल्दीराम से, इवन मोर देन डैट, ठीक है। तो और एक ही स्टेट में 15-20 तो रहते हैं मिनिमम, ठीक है। तो उसका क्या ओनरशिप क्या अलग अलग है? नहीं सर, उसको सर सिंगल फर्म ही कंट्रोल करता है, दैट इज हल्दीराम्स लिमिटेड, राइट। सो दैट इज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। सो लेट्स कम टू द कैश सेल्स। तो ये भी याद रखना, कभी भी कोई भी सामान को वो लोग सर क्रेडिट पे नहीं बेचते हैं, कोई भी सामान सर उधार पे नहीं देते हैं, ऑन सबका सब होता है कैश बेसिस पे, ठीक है। लेट्स कम टू द यूनिफॉर्म डिस्प्ले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म डिस्प्ले? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सर जो सर इस शॉप पे सर जो सामान रहेगा लगा हुआ सर सिमिलर डेकोरेशन रहेगा, सिमिलर लेआउट रहेगा, सिमिलर विंडो रहेगा ऑन द डिफरेंट शॉप्स पे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था, समझ में आया ना गाइस? जैसे जूडियो में आप देखते हो ना, सिमिलर डिस्प्ले रहता है, सिमिलर डेकोरेशन रहता है एंड सो ऑन। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम द चेन स्टोर और द मल्टीपल स्टोर्स, ठीक है। इसका नाम याद रखना कि चेन या फिर मल्टीपल स्टोर्स भी है। लेट्स कम टू द मेल ऑर्डर हाउसेस। तो अभी हम लोग को बस मेल ऑर्डर हाउसेस अभी खत्म करना है और कंज्यूमर कोऑपरेटिव, फिर ये खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। सो लेट्स कम हियर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेस? मीनिंग, मेल ऑर्डर हाउसेस बिजनेस इज अ काइंड ऑफ रिटेल वेयर इन द बिजनेस इज डन दो पोस्ट। सर किसके थ्रू? सर पोस्ट के थ्रू किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखते हो ना, बहुत सारा आप ऑर्डर करते हो आजकल बहुत जगह पे, जैसे कि फ्लिपकार्ट में हो गया, ठीक है, अमेजोन पे हो गया, ठीक है, ओके, ईबे पे हो गया। आपको पता है ईबे भी एक तरीके का वेबसाइट है जहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो। और बहुत सारा जगह पे हम लोग देखते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में भी देख के हम लोग ऑर्डर करते हैं एडवर्टाइजमेंट को। सो सेंड्स कैटलॉग, वो हम लोग को क्या भेजते हैं? आप लोग देखते हो ना न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पे जब भी न्यू ईयर आता है तो बहुत सारा कैटलॉग रहता है, बहुत सारा सर्कुलर रहता है, उसे देख करके हमारे पापा मम्मी वहाँ पे ऑर्डर करते हैं, राइट। तो टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स सर कौन होते हैं? सर वो वैसे कस्टमर्स होते हैं जिसको एक्चुअली हमारे जो बिजनेस में उसको इंटरेस्ट रहता है, राइट। सो बिजनेस प्लेस ऑर्डर दो द पोस्ट। तो सर किसके थ्रू वो लोग भेजते हैं? पोस्ट के थ्रू हमें सर वो भेजते हैं। गुड्स आर डिलीवर्ड दो द वैल्यूएबल, ओके, पार्सल वीपीपी। तो आपको मतलब जो पार्सल है, पार्सल के थ्रू आपको गुड्स मिलता है। द सेलर्स रिसीव द पेमेंट दो द पोस्ट ऑफिस। तो सेलर को भी सर कैसे मिलता है? पोस्ट ऑफिस के थ्रू उनको पेमेंट मिल जाता है। फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, शॉपिंग बाय पोस्ट, ओके,
व्यू पॉइंट, इट मे बी डिस्क्राइब शॉपिंग बाय पोस्ट फ्रॉम द सेलर व्यू पॉइंट। ये याद रखना, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग बोलते हैं शॉपिंग बाय पोस्ट, और फिर सेलर के व्यू पॉइंट से ये लोग हम बोलते हैं सेलिंग द पोस्ट। ठीक है, तो आप अगर उसको परचेस कर रहा है तो शॉपिंग बाय पोस्ट हो गया, और अगर उसको सेल कर रहा है तो सेलिंग द पोस्ट हो गया। राइट गाइस, सॉरी गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेस। तो बहुत सारा टाइप का होता है, जैसे कि एक होता है मैन्युफैक्चरिंग टाइप, एक होता है डिपार्टमेंटल टाइप, एक होता है मिडिल मैन टाइप। तो मैन्युफैक्चरिंग टाइप क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं यहाँ पे टॉयस बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ गाइस? टॉयस बनाता हूँ। और मैंने एक विज्ञापन दिया, विज्ञापन मतलब गाइस एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट सर हम लोग ने कहाँ दिया? न्यूज़पेपर में, सपोज हिंदू में दिया। हिंदू एक तरीके क्या है, एक न्यूज़पेपर है, वहाँ पे हम लोग ने एक एडवर्टाइजमेंट किया और बहुत सारे लोगों को, सपोज मिस्टर शर्मा के फैमिली, मिस्टर अग्रवाल की फैमिली, इन लोगों को सर बहुत पसंद आया। ठीक है, तो हम लोग सर क्या करेंगे, ओके, हम लोगों को सर वो लोग कॉल करेंगे एंड देन थ्रू द पोस्ट, और सर हम लोग बाई पोस्ट उन लोगों को सारा का सारा चीज़ डिलीवरी कर देंगे एंड दे विल मेक द पेमेंट दो इट ओनली। सो दैट इज मैन्युफैक्चरिंग टाइप। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, मैन्युफैक्चरर सेल द गुड्स, ओके, डायरेक्टली, और डायरेक्टली यहाँ पे गाइस, ओके, डायरेक्टली टू द कंज्यूमर दो मेल। सो डिपार्टमेंटल टाइप में क्या होता है, इन दिस टाइप मेल ऑर्डर हाउसेज डिपार्टमेंटल स्टोर सेल द पॉट्स, ओके, सेल पॉट्स डायरेक्टली टू कंज्यूमर दो मेल, मतलब डायरेक्टली मतलब मेल के थ्रू उनको भेजा जाता है। कौन सा? डिपार्टमेंटल टाइप में। सो सर यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर, जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। आप लोग देखते हो ना, जैसे कि यहाँ पे ना, पता है आपको, यहाँ पे एक रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, रायपुर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करता है, जब भी न्यू ईयर आता है, जब भी 25 दिसंबर होता है, ओके, क्रिसमस के समय में, वो लोग सर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो ये है एक तरीके का है क्या, ये तो है तो डिपार्टमेंटल स्टोर। हम लोग देखते हैं और हम लोग देख करके इसको सर क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं। सर क्या करते हैं? ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, सो डिपार्टमेंटल स्टोर सेल डायरेक्टली दो द मेल, इन एडिशन सेलिंग दो डिपार्टमेंट्स। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से सेलिंग दो डिपार्टमेंट्स। लेट्स कम टू द मिडिल मैन टाइप। तो सर मिडिल मैन टाइप क्या होता है, इन दिस केस होलसेलर एंड रिटेलर सेल गुड्स, ओके, दो मेल, दे बाई गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ होलसेलर। तो यहाँ पे याद रखना, बहुत सारे टाइप में क्या होता है कि मिडिल मैन ही सामान को बेचते हैं। मिडिल मैन क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं इन द पेपर, ओके, वो लोग क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं इन द पेपर। और सर वो लोग क्या करते हैं? वो लोग सर मैन्युफैक्चरर से किनते हैं, और मैन्युफैक्चरर से किन के अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सामान को बेच देते हैं। ठीक है, लेट्स कम टू द एडवांटेजेस ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेस। तो सर मेल ऑर्डर हाउसेस का सर एडवांटेजेस क्या है? पहला बात तो ये सर, ये लो कॉस्ट है, एकदम सर कम दाम पे सर ये हो जाता है। राइट, कन्वीनियंस इन शॉपिंग है। तो सर आप घर पे बैठे बैठे सर अपना, घर पे बैठे बैठे या फिर ट्रैवलिंग करते करते आप अपना सामान को सर आप परचेस कर सकते हो, जो कि आप लोकल मार्केट में जाओगे फिर जाकर के आप परचेस करोगे। राइट, तो यहाँ पे लेट्स कम टू द वाइडर मार्केट। अ मेल ऑर्डर हाउसेस कैन सेल गुड्स फार एंड वाइड द होल सेलर, ओके, वर्ल्ड वेयर पोस्टल फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये भी याद रखना, वाइडर मार्केट, आपको पता है ना, अगर आप एक, आपका सिर्फ और सिर्फ एक रिटेल शॉप है, तो सिर्फ और सिर्फ आप एक लिमिटेड प्लेस तक आप सीमित हो। ओके, आपका एक लिमिटेशन है कि अगर वहाँ के जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ वो किन सकते हैं। लेकिन जब आपका जब मेल ऑर्डर हाउसेज, जब आप ये सब करते हो ना, जब आप पेपर ये सब में जब आप एडवर्टाइज करते हो, तो सर आप ऑल ओवर वर्ल्ड में या फिर ऑल ओवर इंडिया में आप सर डील कर सकते हो। राइट, सो वाइडर मार्केट, सर मार्केट बड़ा हो जाता है। लेट्स कम टू द स्मॉल इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा कम लगता है। क्यों? आपको ना एक रिटेल शॉप खोलने का ज़रूरत नहीं है। आपको सर जो गुड्स है ना, उसको सर आपको डिस्प्ले पे सर करने का ज़रूरत नहीं है। आप कहीं पे भी हो, आपने सिर्फ और सिर्फ ऐड करवाया, लोगों को पसंद आया, दे विल प्लेस द ऑर्डर एंड दे विल टेक इट। ओके, लेट्स कम टू द एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। तो सर कोई भी मिडिल मैन लगता ही नहीं है, ना ही यहाँ पे, सपोज आप यहाँ पे आप प्रोड्यूसर हो, आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरर हो, तो आप डायरेक्टली अपना सामान जो है उसको आप बेच सकते हो। ओके, डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ पे सर आपको होलसेलर को देने का या फिर कोई भी मिडिल मैन, कोई भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को इतना पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। लेट्स कम टू द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो गाइस मैं थोड़ा सा समय लग रहा है, बट ओके, मेक श्योर कि ये वाला जो चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। आई होप कि सब कुछ ना इजीली आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर इफ़ यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड ना, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। ओके, सो बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट गाइस। ओके, लेट्स कम एंड येस वन मोर थिंग गाइस, ये जो जितना भी नोट्स देख रहे हो सब आपके बुक से ही है। सो नथिंग टू वरी अबाउट कि यहाँ से पढ़ो या कहीं से। एंड इफ़ यू वांट टू टेक दैट होल नोट, सो यू कैन कॉन्टैक्ट इन द गिवन नंबर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यू नो, आपको पता है मैं भी एक तरीके का, मैं भी एक कोऑपरेटिव एजेंसी का मैं खुद ही एक मेंबर हूँ। पता है आपको क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जो कि खुद के लोगों के बारे में सोचता है। खुद के लोगों के बारे में मतलब क्या होता है? सपोज बहुत सारे लोग मिलकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी खोले। ठीक है, मान लो कि आपके मम्मी पापा किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो पार्ट किए हैं, एंड सपोज 100 पीपल है, और 100 लोग हर मंथ 1000 रुपीज़ करके देते हैं। ठीक है, सो डैट कम्स टू 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। राइट,
तो पूरे साल में ऑलमोस्ट 12 लाख रुपीस जो है वो हो रहा है। ऐसे करके अगर 10 साल तक अगर करें तो ऑलमोस्ट 12 CR हो जाएगा, राइट। तो सर 12 करोड़ रुपया जो है ना, या फिर वो 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगा। तो इसके क्या करते हैं लोग, इसके लिए ना लोग अपने लिए ही एक ऐसा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर खोल देते हैं जिसमें ये जो 10 लोग थे ना, या फिर ये जो 100 लोग थे ना, खुद को सर बेनिफिट पहुंचा सकें। यहाँ पे सर कोई भी तरीके से बाहर वाले कंज्यूमर को, बाहर वाले रिटेलर को नहीं दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये खुद के लिए ऐसा किया जाता है। ओके, कल्टिवेटिंग द बेनिफिट फॉर द ओन मेंबर, ठीक है। सपोज आपको एक बात पता है क्या, जो ये जो अमूल है ना, ये अमूल भी एक तरीके का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है, ठीक है। लेकिन अभी उसमें इतना ज़्यादा हो गया है कि लोगों को वो अभी सेल करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इज द रिटेल एस्टेब्लिशमेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड बाय द कंज्यूमर्स देमसेल्व्स टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट डेली यूज एंड रीजनेबली एट अ लो प्राइस। ये याद रखना आप, कंज्यूमर जो कोऑपरेटिव स्टोर होता है ना, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर मतलब खुद के लिए आप लोगों ने एक स्टोर खोल रखा है, ठीक है। बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स हैं ना, उसमें भी ना ये आपको कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर दिखाई देगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो अपार्टमेंट के मेंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर वही लोग परचेस कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे लो प्राइस पे मिलता है, ठीक है। बट सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए होता है। लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री मतलब इच्छा के अनुसार एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें जो कंज्यूमर, जो भी जितने भी लोग हैं ना, वो खुद को रजिस्टर करवाते हैं अंडर द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, इट इज़ ओन एंड मैनेज बाय कंज्यूमर्स। जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी उस अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं। वहाँ पे सर इट डील्स इन आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़। तो सर डेली यूज़ के जितने भी आर्टिकल्स है वो लोग उसमें डील करते हैं। परचेस करते हैं गुड्स किससे सर, प्रोड्यूसर से और होलसेलर से, राइट। इट सेल्स द गुड्स टू द मेंबर्स ओनली। तो सर जो भी उसके मेंबर्स हैं वही लोग सर उसको परचेस करते हैं एक साथ, सब लोग पैसा मिला करके, और जिसको सर जितना ज़रूरत है लो प्राइस पे सर वो लोग वहीं से परचेस कर लेते हैं, उन्हें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ता। एवरी मेंबर हैज़ 1 वोट इररिस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डिंग। अगर आपका घर पे अगर 4 लोग हैं और अगर आप लोगों ने कंट्रीब्यूट किया तो सर आपको एक मेंबर को 1 वोट मिलेगा, जिससे सर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर में आपको कौन मेंबर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, इसी सर पता चल जाता है, ठीक है। आई होप इट्स टोटली क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद द एडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस सर क्या है, सर ये बहुत अच्छा एडवांटेजेस है इसका, और इवन कि मैं भी एक मेंबर हूँ तो आई नो कि बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस मिलता है इससे। लेट्स कम टू द नंबर 1, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपको पता है लो ऑपरेटिंग क्या होता है, मतलब खर्चा सर लगता ही नहीं है सर, खर्चा सर ना के बराबर लगता है, ठीक है, एकदम लो कॉस्ट पे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर सेल गुड्स मेनली टू इट्स मेंबर। सर किसको बेचते हैं सर, अपने मेंबर्स को बेचते हैं। देयर इज नो नीड टू इनकर एक्सपेंसेस ऑन एडवर्टाइजिंग। सर एडवर्टाइजमेंट पे सर कोई खर्चा नहीं लगता है, सेल्स पे कोई खर्चा नहीं लगता है, स्टाफ पे कोई खर्चा नहीं लगता है, मैनेजमेंट पे कोई खर्चा नहीं लगता है, ठीक है। क्यों सर, क्यों नहीं लगता है सर, क्योंकि सर सारे के सारे लोग तो कंज्यूमर्स ही हैं, ठीक है। थ्रिफ्ट एंड सेविंग। थ्रिफ्ट एंड सेविंग का मतलब क्या है, क्या पता है आपको, कंज्यूमर सर खुद के लिए सर सेव करते हैं, खुद के लिए सर आपके सेविंग्स में से सर कुछ पैसा काट के रखता है, दैट इज थ्रिफ्ट, और उसको सेव करते हैं, और सेव करके सर क्या करते हैं, गुड्स को किनते हैं एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, जिससे सर सभी का सभी लोगों को भलाई हो सके और सभी के सभी लोग इसको लो प्राइस पे किन सके। प्रॉफिट्स ऑफ मिडिल मैन आर एलिमिनेटेड। कोई भी मिडिल मैन नहीं रहता यहाँ पे, रिटेलर को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। क्यों, क्योंकि सर वो कंज्यूमर्स के लिए ही होते हैं और खुद के लिए वो लोग परचेस करते हैं। इन दिस वे द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग ऑफ द सिक्योर्ड अमंग देम। देन बल्क बाइंग। पता है वो लोग ना थोड़े थोड़े सामान नहीं किनते, सारे के सारे जितने भी अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, सपोज 100 लोग रहते हैं तो सबके सब 1000 रुपया करके देंगे, ओके, एवरी मंथ। और वो लोग सर बल्क में सर सारा के सारे सामान लेंगे, फिर वहाँ से किन करके सर खुद को बेचेंगे एट अ लो प्राइस। जितना पे सर उन्होंने किना था उतना पे बेच देते हैं, जस्ट बिकॉज सारे के सारे घर को सर इससे बेनिफिट मिलता है। क्यों, क्योंकि रिटेलर का जो बीच का जो प्रॉफिट था, रिटेलर का जो सर बीच का जो भी मेन जो मार्जिन था ना, वो सर पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। देन बल्क बाइंग। Then there's come the democratic management. The principle of 1 member 1 vote. Okay, democratic management of the store are common advantage of the members. So these stores provides training to the members of the self government. ये भी याद रखना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स को। रिच मेंबर्स कैन नॉट डोमिनेट द स्टोर। तो सर ऐसा नहीं है कि आप अगर रिच हो तो आप ही डोमिनेट करोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है सर। 1 member 1 vote किया जाता है, फिर देखा जाता है कि हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। सो लेट्स कम टू द हाइपर मार्केट एंड डोंट वरी गाइस, ये जल्दी बस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेट मी डू समथिंग। हाइपर मार्केट के लिए ना हम लोग क्या करते हैं कि अभी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हो चुका है, तो वी विल कंटिन्यू हाइपर मार्केट फ्रॉम द नेक्स्ट, दैट इज ऑन द पार्ट 3। तो पार्ट 3 से हम लोग हाइपर मार्केट स्टार्ट करेंगे, दैट्स एंड फॉर दिस होल। सो आई होप आप लोग को ये बहुत ईजिली ये सब चीज़ समझ में आया था, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग, एंड जस्ट डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप सपोर्टिंग अस।